Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is the earth. Tickle your brain to answer. Which is the only planet known to have life? ऐसा कौन सा planet है जिसमें life possible है? Why our earth is called as the blue planet? Earth को blue planet क्यों कहा जाता है? Let's find out in this chapter. Our earth is the third planet from the sun. It is the only place in the universe where life exists. The earth is also known as blue planet because about 3/4 of its surface is water and 1/4 is land. It is surrounded by a thick layer of air. This layer is called atmosphere. Beyond this layer of air is space which is big, dark and empty. तो अर्थ जो है वो सन के बाद तीसरा प्लैनेट है. यही एक लौता ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है अभी. ब्लू प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है और बाकी का जो पोर्शन है वो लैंड से कवर्ड है. इसके अलावा थिक लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिसको एक साथ कलेक्टिवली कहा जाता है एटमॉस्फेयर. शेप ऑफ द अर्थ. The earth's shape is like an orange. Initially, people thought that the shape of the earth was flat. In the long run, scientists discovered that our earth is actually spherical in shape. The fact that earth is spherical, like a ball, in shape was confirmed by scientists and photographs taken by satellites in स्पेस. तो पहले लोगों को लगता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब साइंटिस्ट ने डेवलप करा, स्पेस में गए, फोटोग्राफ्स खींची गई, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वॉयजेस हुए, ट्रैवल एक्सकर्जन्स हुए, तो पता चला कि अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो है स्फेरिकल. इट इज लाइक अ बॉल. If we stand at a seashore and observe a ship sailing away from the shore, we will see that the lower part of the ship disappears first and the top or the upper part disappears last. This is because the ship is sailing on the curved surface of the earth. अगर आप किसी सी शोर पे खड़े हैं और आप एक सी को डिपार्ट होते हुए देख रहे हैं तो उसका जो लोअर पोर्शन है वो सबसे पहले डिसअपियर होगा और धीरे धीरे आपको ऊपर का पोर्शन डिसअपियर होना शुरू होगा. ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो आपका अर्थ का सरफेस है, गोल है, इसीलिए धीरे धीरे आपको सबसे पहले नीचे की चीज डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है. Structures of the earth. The earth is made up of 3 layers. Number 1 crust, number 2 core, number 3 mantle. तो अर्थ की सरफेस 3 पार्ट से मिलकर बनी है, crust, core and mantle. Know it too. The earth is the only planet that has water in liquid state. जितने भी planet solar system में present हैं, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पे वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. नंबर 1 क्रस्ट. The outer layer of the earth is called the crust. It is made up of materials like rocks, soil and seabed. Mountains, beaches, deserts and oceans are all parts of the earth's crust. तो सबसे ज़्यादा बाहरी पोर्शन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट. अलग अलग मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल रॉक, सॉइल एंड सीबेड से ये बनी है. आपके जो माउंटेन्स, बीचेस, डेजर्ट्स, ओशियंस, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके क्रस्ट में ही प्रेजेंट होती हैं. नंबर 2 कोर. The center of the earth is called the core. This layer is very hot and is made up of melted metals. This is the innermost layer of the earth. जो आपके अर्थ का सेंटर मोस्ट पॉइंट है वो कोर है. इट इज वेरी हॉट और यहाँ पे आपके जो मेटल्स होते हैं मेल्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. नंबर 3 मैंटल. The part of the earth between the crust and core is called the mantle. The earth's mantle is also very hot and is made up of flowing rocks. जो आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट और कोर के बीच का पोर्शन होता है वो आपका मैंटल होता है और मैंटल में आपकी बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है और यहीं पे आपके जो रॉक्स होते हैं वो फ्लोइंग पार्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं. नो इट टू. The earth is about 81 times heavier than the moon. जो अर्थ का टोटल वेट है, मास है, 81 टाइम्स भारी है मून के सरफेस से. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ.
Our earth is moving all the time. It moves around the sun. Our earth shows two kinds of movement, rotation and revolution. तो आपका जो अर्थ का सरफेस है, ऑल्दो हम फील नहीं कर सकते वो मूवमेंट, लेकिन कॉन्स्टेंटली अर्थ जो है वो मूव करती रहती है. दो टाइप के मेन मूवमेंट्स होते हैं, एक है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन. रोटेशन ऑफ द अर्थ. If we spin a top, it moves round and round while staying at the same place. The top is said to spin about a line passing through its center. तो आपका अगर आप कोई लट्टू जो होता है, टॉप होता है, उसको अगर आप घुमाएंगे तो वो एक ही पोजीशन में गोल गोल रोटेट करता रहता है. अर्थ भी बिल्कुल इसी तरीके से एक इमेजिनरी प्लेन पे एक ही जगह पर रहकर भी मूव करती रहती है. We cannot see the line as it is an imaginary line. इस लाइन को हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक imaginary line है. In the same way, the earth also spins about an imaginary line called axis, which passes through the center of the earth. The movement of the earth about its axis is called rotation. The rotation of the earth is responsible for the formation of day and night. इसी तरीके से अर्थ भी एक इमेजिनरी लाइन पे बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ पे मूव करता रहता है. इसको एक्सिस कहा जाता है और इसी मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन जो आपके डे और नाइट होता है, ये इसी रोटेशन की वजह से होता है. डे एंड नाइट. The sun shines all the time, but the entire earth does not face the sun at the same time. Due to the earth's rotation, only half of the earth which faces the sun receives the sunlight and hence it has day. The other half of the earth which does not face the sun does not receive sunlight and hence it has night. तो सन जो होता है, जिस पार्ट में आपकी अर्थ के वो दिखता है, उस पार्ट ऑफ द अर्थ में आपका डे टाइम होता है, सनलाइट प्रेजेंट होती है. जो सन होता है थ्रू आउट द डे वो शाइन करता रहता है. इट्स जस्ट दैट जो अर्थ की रोटेशन होती है, जो रोटेट होते होते जो पार्ट सन के सामने आता है उस पार्ट पे दिन वाला टाइम होता है और सन शाइन करता है, और दूसरी तरफ जो साइड सन के सामने नहीं होता, बैक साइड पे होता है, वहां पे रात हो जाती है. The earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. We experience one day and one night every 24 hours. Approximately 24 घंटे लगते हैं अर्थ को रोटेट करने के लिए, और एक दिन में आपको एक ही बार डे टाइम और एक ही बार नाइट टाइम एक्सपीरियंस होता है. एक्टिविटी. Aim. To understand how days and nights are caused. Materials needed: a globe, a torch, a table and two thumb tags, one red and one blue. Method. Number 1. Place two thumb tags on opposite sides of the globe. Number 2. Shine the torch on the side of the globe that has the red thumb tag. This portion of the globe that has the red thumb tag has daytime now. The portion of the globe away from the torch has nighttime. Number 3. Now keep the torch shining and spin the globe slowly. Notice that when the blue thumb tag has day, it is night for the red thumb tag. Conclusion. Rotation of the earth causes day and night. तो आपको एक ग्लोब लेना है, टॉर्च लेना है, एक थंब टैग लेना है रेड और ब्लू कलर का. और ग्लोब के दोनों ही साइड्स में आप एक जगह रेड और एक जगह ब्लू थंब टैग लगा दीजिए. जिस साइड पे टॉर्च आप रखेंगे, जिस ग्लोब के साइड में जहां पे लाइट पड़ रही है वहां पे डे टाइम है, ऑपोजिट साइड में आपका नाइट टाइम है. वाइस वर्सा अगर आप करेंगे, अर्थ की जो ग्लोब है उसको रोटेट कर देंगे तो आपका जो टॉर्च की लाइट है वो ऑपोजिट साइड पे पड़ेगी, वहां पे डे टाइम हो जाएगा और ऑपोजिट साइड पे नाइट टाइम हो जाएगा. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. The earth moves around the sun in a fixed path called the earth's orbit. The movement of the earth around the sun in an orbit is called revolution. तो अर्थ जो है with respect to the sun, सन के चारों ओर एक ही फिक्स्ड ऑर्बिट में अर्थ भी सन के चारों ओर घूमता है. इसे कहा जाता है रेवोल्यूशन. रोटेशन भी करता है, रोटेट करते करते ही सन के चारों ओर रिवॉल्व भी करता रहता है. The earth takes about 365 days to complete one revolution. 365 days makes an year. Revolution of the earth causes changes in the seasons. तो अर्थ को सन के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लगते हैं पूरा रिवॉल्व करने के लिए. और इस रेवोल्यूशन की वजह से जो अलग अलग टाइप के सीजन्स एक साल में आप एक्सपीरियंस करते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, ये इसी रेवोल्यूशन की वजह से होता है.
Know it too. All planets rotate on their axis from west to east. Venus is the only planet which rotates from ईस्ट टू वेस्ट. तो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, बट वीनस इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है. When the Earth's axis points towards the sun, it is summer for that part. When the Earth's axis points away, winter can be expected. तो अर्थ का जो एक्सिस होता है जब सन के सामने होता है, पास होता है, उस टाइम पे उस पोर्शन में समर्स होती हैं, और जैसे ही दिस एक्सिस इज ऑपोजिट टू द सन्स डायरेक्शन, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ में सर्दियां आ जाती हैं. मिडवे बिटवीन दीज टू times, in spring and autumn, the spin axis of the earth points 90 degrees away from the sun. और इन्हीं समर और विंटर सीजन्स के बीच में जब एक्सिस जो होता है इट इज 90 डिग्रीज इन रिस्पेक्ट टू द सन, उस टाइम पे आपके स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स आते हैं. नो इट टू. A small model of the earth is called a globe. It has an axis just like the earth. The planet Mercury takes 59 days to make a rotation and only 88 days to circle the sun. So an year in Mercury is nearly 3 months on Earth. तो आपका जो छोटा मॉडल होता है अर्थ का उसे ग्लोब कहा जाता है, उसमें भी एक्सिस प्रेजेंट होता है. जो प्लैनेट मर्क्यूरी होता है इट टेक्स 59 डेज रोटेट करने के लिए और रिवोल्यूशन करने के लिए सन के चारों ओर सिर्फ 88 डेज लगाता है. तो मर्क्यूरी का एक साइड इज ओनली 3 months ऑन अर्थ. एक्टिविटी. Give one word for each of the following. The movement of the earth about its own axis. The part of the earth between the crust and the core. The layer of the air surrounding the earth's surface. The movement of the earth around the sun. तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स और रिडल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि उनके लिए क्या टर्म यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो आपका है उसको कहते हैं रोटेशन. कीप इन माइंड. Atmosphere, the layer of the earth surrounding the earth's surface. Crust, the outer layer of the earth. Core, the center of the earth. Mantle, the part of the earth between the crust and core. Rotation, the earth's spinning movement about its own axis. Axis, an imaginary line that passes through the middle of the earth on which the earth spins. तो आपका एटमॉस्फेयर जो होता है वो अर्थ की सरफेस के आउटर मोस्ट पोर्शन में जो एयर की थिक लेयर होती है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. क्रस्ट, कोर, मैंटल, ये तीनों मिलकर बनाते हैं अर्थ. सबसे आउटर मोस्ट होता है क्रस्ट, इनर मोस्ट होता है कोर, और इन दोनों के बीच में आ जाता है मैंटल. रैप इट अप. The Earth is the third planet from the Sun and the only place in the universe where life exists. The thick layer of the air surrounding the Earth is called atmosphere. The crust is made up of materials like rocks, soil and seabed. The Earth's spinning movement about its own axis is called rotation. The Earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. The Earth moves around the Sun in a fixed path called the Earth's orbit. The Earth takes about 365.14 days to complete one revolution. Revolution of the Earth causes changes in the seasons. तो अर्थ जो है वो सन के बाद तीसरा प्लैनेट है. एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. 3 इसके लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर. इसके अलावा 2 टाइप की मूवमेंट करती है जो अर्थ होती है, कि रोटेशन करती है अपने एक्सिस पे जिसकी वजह से डे और नाइट होता है. दूसरा होता है रेवोल्यूशन. सन के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे जो अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती है. 365.14 डेज लेती है एक रेवोल्यूशन के लिए, और इसकी वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.